Hi everyone, welcome to iQuanta. This is Yogesh, and here I am to help you fill the IIM Amritsar IPM program form. Okay, so few days back, a new IIM Amritsar announced that it is going to release its IPM program. Okay, if you want to know everything about this program in detail, the eligibility criteria about the program, what all will be the curriculum, selection process, I have discussed that in a video that I posted earlier. You can go back to my channel and check it out. Okay. Otherwise, I'll also put the link of that particular video in the description at the top. You can check it out. Coming to this page, I'm on IIM Amritsar website. I'll also put the link of this particular page at the top, okay, so that you can straight away come here and start filling your form. तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से द एडमिशन प्रोसेस, देन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अबाउट द प्रोग्राम, ठीक है. एंड आपको डिटेल में अगर देखना है तो अगेन आई विल से वॉच दैट वीडियो. ओके, वील स्ट्रेट अवे गो टू अप्लाई नाउ फॉर आईपीएम section. Okay, this section is visible over here. It was not there earlier. Okay, so check my cursor, apply now for IPM section. I'll click on this. Here it is asking me to log in. Okay, I have not registered, so I cannot log in. I don't have my login credentials as of now, so I'll simply click on register. Okay, and I'll simply have to put my details, put my mobile number, then put your first name, middle name, last name. If you have a middle name, put it over. Otherwise, you can simply put your last name as well. Okay, so suppose I straight away put my last name, then date of birth. So if this is my date of birth, then gender, select your category. Okay, there are few fields that are not allowed to be changed later, so select your category properly. Okay, so if you are from other categories like OBC, NCOBC, SC, ST, EWS, you might be asked to put up a certificate for that. Otherwise, if you're from general, you don't need a certificate. Okay, so मैं general select करता हूँ, and then date of birth मैंने भर दी है. नाउ इट इज आस्किंग मी आर यू डिफरेंटली एबल्ड. सो इफ यू आर फ्रॉम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो. ओके, देन इट इज आस्किंग मी टू यू नो सेलेक्ट द प्रोग्राम. पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप पीएचडी आपके लिए नहीं है, आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट को सिलेक्ट करना है. ओके, देन इट इज आस्किंग मी टू पुट माई लॉग इन क्रीडेंशियल. तो जहाँ पे मुझे अपना ईमेल डालना है, सपोज आई पुट माई ईमेल, एंड नाउ इट इज आस्किंग मी टू क्रिएट अ password. Okay, you can confirm the password, enter your captcha. So enter this image, the digits visible in the image over here. And if this is not visible, you can also generate another captcha. Okay, now click on register. Do check all your mobile number details, everything, before you finally click on register. Okay, so if everything is correct, click on register. Do remember your password as well. Click on register, and my registration is complete. Okay, so once my registration is successful, I'll get this screen, and now I can click on go back to login. अब मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ. Click on login. So it is telling me that this is invalid email or password. Probably I've entered the password incorrectly. If you find a message, an error message while logging in, which says that your email is invalid, your password is invalid, anything, देन आपको आई एम अमृतसर से जस्ट एक मेल आएगा रजिस्टर करने के बाद, इन विच दे आर आस्किंग यू टू वेरीफाई योर ईमेल. ओके, तो आप उस मेल को ओपन कीजिएगा एंड वहां पे आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर सकते हो. वंस वेरीफाइड यू विल बी एबल टू लॉग इन थ्रू द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. ओके, देन यू क्लिक ऑन लॉग इन. ओके, एंटर योर ईमेल, पासवर्ड, कैप्चा, क्लिक ऑन लॉग इन एंड यू विल बी एबल टू लॉग इन वेरी इजीली. एक बार ये हो जाएगा तो आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, इन विच यू हैव योर प्रोफाइल, प्रोग्राम शॉर्टलिस्टेड, रिसेंटली अप्लाइड, चेंज पासवर्ड एंड एवरीथिंग. ओके, यहाँ पे आपका फुल नेम आपको शो कर रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको शो कर रहा है. इट इज गिविंग यू योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल. चेक दैट अगेन. ओके, देन यू सिंपली गो टू प्रोग्राम शॉर्टलिस्टेड. ओके, तो आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हो. क्लिक ऑन अप्लाई नाउ एंड अगेन यहाँ पे आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कैटेगरी, ईमेल, मोबाइल नंबर, सब कुछ ऑलरेडी फिल्ड आ रहा है. अब आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है. यू कैन फिल योर एड्रेस विद प्रॉपर पिन कोड, सिटी,
परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन सेम है परमानेंट एड्रेस की तरह, तो यू चेक दिस बॉक्स एंड इट बी कॉपीड ओवर हियर। अदरवाइज आपका अगर कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ पे आप करेंटली हो, ओके, प्रेजेंट एड्रेस, वो अलग है, तो आप अलग से फिल कर सकते हो, ठीक है, इन दिस फील्ड। नाउ पेरेंट्स पर्सनल डिटेल्स, तो आप पेरेंट्स का नाम डाल सकते हो, ओके। ओके, एंड देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैज टू बी पुट ओवर हियर। तो हायर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12। इफ योर बोर्ड वाज दिस, राइट योर बोर्ड नेम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप नेम ऑफ स्कूल, you put your name of the school, then specialization. uh this is probably the stream that you come from, commerce, humanities, science, whatever, okay. नाउ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। तो अगर आप अपियरिंग हो क्लास 12 में इस साल, तो अपियरिंग में क्लिक करोगे, आपसे बाकी डिटेल्स नहीं मांगेगा। बट अगर आप पास्ड हो ऑलरेडी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से ईयर में पास हुए थे, ओके। तो आपके ईयर्स जो है वो ऊपर हैं, आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग डाल सकते हो, अगर आप जिस भी ईयर में पास हुए हो, ठीक है। और अगर आप अपियरिंग हो, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। कमिंग टू द मार्क्स एंड सीजीपीए दैट यू गॉट। सो इफ यू गॉट परसेंटेज मार्क्स, अगर आपका बोर्ड परसेंटेज में मार्क्स देता है, आप परसेंटेज डालोगे। अदरवाइज अगर आपको सीजीपीए या लेटर ग्रेड्स मिलते हैं, तो आप सीजीपीए एंटर कर सकते हो, ठीक है। सपोज आई गॉट मार्क्स, तो आई पुट माई मार्क्स ओवर हियर, परसेंटेज मार्क्स। तो आपका अगर ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में जितना भी परसेंटेज है वो आया है, वो आप यहाँ पे डाल सकते। कमिंग टू डिस्टिंक्शन इफ एनी, तो ठीक है। मैट्रिकुलेशन बेसिकली क्लास 10 है, तो क्लास 10 में अगेन आप अगर सेम बोर्ड से, तो सेम बोर्ड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। स्कूल नेम आपको एंटर करना है, अगर दूसरा स्कूल है तो दूसरा स्कूल डालना है, ठीक है। आपने कब ये पास किया, ये आपको डालना है, ठीक है। तो 10th का सपोज आई पुट दिस, फाइन। तो आप मई जून भी डाल सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज यू पुट योर क्लास 10 परसेंटेज, अगर आपको सीजीपीए मिला था या लेटर ग्रेड्स मिले थे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको सीजीपीए नहीं डालने मिल रहा है, मान लो आपको फाइनल सीजीपीए अगर नहीं मिलता है, तो उस केस में आप अपने बोर्ड का सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन वाला जो रूल है उसको फॉलो करते हुए अपने सीजीपीए को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सीबीएसई में अगर आपको कोई ग्रेड पॉइंट मिला हुआ है, तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करने पे आपको आपकी परसेंटेज मिल जाती है। तो अगर आपका सपोज 95% आया है 10th में, तो आप 95 डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका ओवरऑल ग्रेड 10 था, जैसे कई लोगों का 9.4, 9.6, 9.8 अगर 10th में था सीबीएसई में, तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर सीजीपीए मिला तो सीजीपीए डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर आपका सीजीपीए था 9.4, आप 9.4 डालिए, ठीक है। बट ये मत कीजिएगा कि आपने परसेंटेज मार्क्स सेलेक्ट किया और नीचे आप 9.4 डाल रहे हो, दैट विल बी अ ह्यूज मिस्टेक, ओके। तो सीजीपीए सेलेक्ट कर रहे हो तो अपना सीजीपीए डालो 10th का, अगर आप मार्क्स सेलेक्ट कर रहे हो तो उसको मार्क्स में कन्वर्ट करके डाल सकते हो, दे वोंट बी एनी प्रॉब्लम। वंस दिस इज डन, इतना सब कुछ आपने भर दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो आप 7 कंटिन्यू करके आगे जा सकते हो। नाउ देयर इज वन थिंग ओवर हियर, ये आपसे क्लास 10 की स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है। तो इन क्लास 10 स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जनरली ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन हमारे पास क्लास 10 में होता नहीं है, यूजुअली हम सारे जनरल सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, है ना, साइंस, एंड देन वी स्टडी सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। तो आई वुड सजेस्ट कि स्पेशलाइजेशन में आपको कितना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आप सिंपली अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पे भर सकते हो। तो सपोज आई पुट मैथ, मैथमेटिक्स, ओके, देन साइंस, देन इंग्लिश, देन हिंदी, देन सोशल साइंस। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, ओके। तो आप सेव एंड कंटिन्यू आगे कर सकते हो, ठीक है। तो दे आर एक्सेप्टिंग इट, दे वोंट बी एनी प्रॉब्लम। अगर आपने 10th में सब्जेक्ट्स का नाम भी लिख सकते हो। इनफैक्ट अगर आप 12th में भी, मैं सजेस्ट करूंगा कि सारे सब्जेक्ट का नाम मेंशन करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ओके। So now we are into this section where we have to put extracurricular activities with significant achievements, and then we also have to put award, reward, recognition, professional affiliations and everything. ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप खुद को कितना अंडर एस्टिमेट करते हो, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स ने काफ़ी अचीवमेंट्स की होती हैं, बट उनको लगता है कि इट्स नॉट एन अचीवमेंट, ओके। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप अपने प्रोबेबली अगर आप अपनी अचीवमेंट्स में कुछ दिखाना चाहते हो,
और सपोज आप अपने स्टेट में या लोकली अगर आप अपनी स्कूल में भी 100 स्टूडेंट्स के बीच में रैंक 6 या 7 आए हुए थे, चाहे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही क्यों ना हो, एकेडमिक अचीवमेंट में, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो ऑब्वियसली। अगर आपने एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे 200 पार्टिसिपेंट से आपकी रैंक 6 या 7 या टॉप 10 के अंदर आई, वो भी आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो प्रोबेबली अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऐसे कंपटीशन में खुद को रिप्रेजेंट करके आए हो जहाँ पे जाना ही बहुत टफ है, जहाँ पे सेलेक्ट होना, शॉर्टलिस्ट होना ही बहुत टफ है, वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो मैं आपको एक सैम्पल रेज्यूमे दिखा रहा हूँ, ठीक है, या फिर सीवी बोलूंगा मैं इसे, जहाँ पे फटाफट ये लिखा हुआ है कि कैसे अपनी अचीवमेंट्स को, एक्स्ट्रा करिकुलर्स को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यू कैन रीड इट, पॉज कर सकते हो वीडियो, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे एकेडमिक अचीवमेंट में ऐसा कुछ भी है तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो जो भी एक बार आपने पास्ट में किया है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो एक बार देखिए कि आप उसे कैसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो सकता है, डिबेट कंपटीशन का सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। और इट कुड बी एनीथिंग, आपने कहीं पे वॉलंटियर किया है वो सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। आप किसी एनजीओ में कुछ काम करते हो साइड बाय साइड, काफी सारे बच्चे अपने कॉलेज के टाइम पे हेल्प करते हैं एनजीओ को इन सो मेनी थिंग्स, तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। सो देयर अ लॉट यू कैन पुट ओवर हियर। एक बार पीछे जाइए, देखिए कि आपने पास्ट 3 इयर्स में क्या क्या अचीव किया है, ठीक है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। मैं बस एक सैम्पल स्क्रॉल आपको दे रहा हूँ इस रेज्यूमे का, कैसे आप यहाँ पे चीजें पुट कर सकते हो। सपोज आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स अगर डालने हैं तो आप इस तरीके से पुट कर सकते हो, ठीक है। एंड सेम पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी थी कोई, है ना, आप कोई पर्टिकुलर हेड बॉय हेड गर्ल थे, वो भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब आप डाल सकते हो, ठीक है। कुछ भी अगर आपने किया है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट एंड पुट इट ओवर इन द सर्टिफिकेट। तो मैं अभी के लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप इसको पुट कर सकते हो। यू वांट टू पुट मल्टीपल थिंग्स, आप एक फील्ड को भरिए एंड देन दिस प्लस साइन को क्लिक करके आप और कुछ इसमें एड अप कर सकते हो, ठीक है। सेम फॉर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन एज वेल, ओके। बट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एट लोकल स्टेट नेशनल लेवल, तो लोकल लेवल पे भी ये आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर है उसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टेट और नेशनल लेवल तो इवन बेटर। देन यहाँ पे ब्रीफ डिटेल्स ऑफ अवार्ड रिकॉग्निशन, ठीक है, जो भी आपको मिला हुआ है। सपोज आपने कोई भी एक बड़े लेवल पे जा करके कुछ किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, यहाँ पे आपने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है, प्रोबेबली आपने विन नहीं किया, आप जीते नहीं हो, बट आपकी कोई रैंक नहीं आई है, लेकिन आपने रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे, एंड दैट इफ यू फील इज अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, यू कैन डेफिनेटली पुट इट ओवर हियर, ओके। तो जो भी अवार्ड रिकॉग्निशन आपको मिले वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इट हेल्प्स यू बिल्ड अ गुड प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल अच्छी दिखती है इससे, एंड आपके चांसेस बढ़ते हैं सिलेक्शन के। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट ड्यूरिंग दैट, अबाउट दैट इन द इंटरव्यू, ओके। आईपी मेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना ही डालना है, तो ये तो आईपी मेट इंदौर के बाद ही आपको मिलेगा जब उसका फॉर्म भर दोगे आप। बाकी आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होता है पासिंग सर्टिफिकेट, वो डालना है स्कैन करके। और 12th का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट डालना है। 12th वाला शायद आपको उन बच्चों को नहीं दिखेगा जिन्होंने 12th में अपियरिंग क्लिक किया हुआ है, ये उनके लिए है जिन्होंने पास्ट क्लिक किया हुआ है, ठीक है। आईपी मेट रजिस्ट्रेशन यानी कि आईपी मेट इंदौर का एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्कैन कॉपी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। परसेंटेज इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फॉर मैट्रिकुलेशन, जैसे आपका ग्रेड पॉइंट आया है ना, या फिर आप यहाँ पे सिंपली अपना, अब परसेंटेज इक्विवेलेंस का मतलब हो गया कि जो भी आपका ग्रेड पॉइंट आया है, अगर उसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने का जो रूल जहाँ पे लिखा हुआ है मार्कशीट में, आप वहाँ पे अपनी मार्कशीट ही एक तरीके से डाल सकते हैं, रूल जहाँ पे मेंशन है वो डाल सकते हो, ठीक है। देन परसेंटेज इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फॉर हायर सेकेंडरी, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होता है तो आप हमेशा इन सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हो, ठीक है। और आप चेक कर सकते हो कि दिखता कैसा है एक तरीके से, है ना, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स को लिख सकते हो, ठीक है, अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, स्कूल, सब कुछ लिख सकते हो, गिवन फॉर्मूला मार्कशीट पे जो परसेंटेज कन्वर्जन का है वो लिख सकते हो, एंड देन यू कैन पुट योर ग्रेड पॉइंट इन ऑल, एंड फाइनली कन्वर्जन दिखा करके इसको आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके सिग्नेचर मार करके, सेल्फ अटेस्टेड में कुछ नहीं करना होता है, सेल्फ अटेस्टेड लिखो उस पर एक कॉर्नर पे यहाँ कहीं पे, एंड देन उसके नीचे अपना नेम मेंशन कर दो, एंड इसकी स्कैन कॉपी लेकर के आप डाल सकते हो। दिस इज बेसिकली परसेंटेज इक्वल, ओके। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने इतना सब कुछ मांगा हुआ है,
ठीक है, दे कुड हैव वेरीफाइड इट लेटर एज वेल। एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू विश टू हाईलाइट, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप ऊपर नहीं पुट कर पाए, आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो डोंट लीव एनी स्पेस ब्लैंक, ओके। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी अवार्ड है, रिकॉग्निशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो आपको यहाँ मेंशन करनी चाहिए, आप वो कर सकते हो। जल्दीबाजी नहीं करनी है, कुछ पूछना है तो यू ऑलवेज हैव आईक्वांटा का व्हाट्सएप ग्रुप एट द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, आपको मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एंड आस्क योर एनी क्वेरी ओवर देयर, सो दैट आप गलत ना भर दो, ठीक है, फॉर्म को। सपोज आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे जाते हो, लेट मी सी कि मुझे आगे जाने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है, बिकॉज मेरे पास आईपी मेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। सो जब तक आईपी मेट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर नहीं आता, आई कैन नॉट गो अहेड। तो लेट इंदौर स्टार्ट इट्स एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इंदौर को अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने दो। एक बार वो हो जाता है तो वी कैन कम टू दिस पेज अगेन, पुट दैट नंबर ओवर हियर एंड देन वी कैन गो अहेड। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। अभी तक आप यहीं तक भर सकते हो, ठीक है। एंड विल सी लेटर, ओके, इसके आगे क्या करना है।